This is Rajneesh Sharma, Faculty Mathematics, Prince Academy, Sikar. In last two classes, we have discussed introduction of congruency of triangles and exercise 7.1. Today we start here exercise 7.2, that is completely based on, that is criteria for congruency of triangles, or maybe we can say conditions for congruency of triangles. This is, we have already discussed in the starting class how we apply the criteria, means condition for congruency of triangles. Let us see here how to solve if the two triangles given and we find that both are congruent. So which condition is here applied? So that's we have find out here. Okay. So see here, question first is, which congruence criteria do you use in the following? Means in this question, that triangle ABC and triangle DEF. Now three sides are given equal, so that triangles are congruent. But which condition or maybe which criteria we apply here, means for both triangles are congruent. So that we want here identify. So see here, AC equal है किसके? AC equal है, that is DF. Okay, AC equal है DF के, given है ये. AB equal है DE. AB equal है किसके? DE. BC equal है EF, तो BC equal है EF. This all data have given. We to identify which congruence criteria, means वो कौन सा criteria, वो कौन सी condition है जिससे ये दोनों triangles congruent है. We have discussed different criteria, that is SSS, SAS, okay, ASA, AAS and RHS. These criteria, these conditions we have already discussed. If we know about for this thing, then we have easily find out. Okay. Okay. So now see here very carefully. In this, what things we have to require? So see very carefully. This is ABC and this is DEF. Okay. Three sides are equal. So if three sides are equal, so which condition is there for three sides? That is side, side, side. Means triple S rule, triple S criteria. So by SSS rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay. If we know about the all things related to this, then we have easily give the answer, means by which condition, means ये कौन सी condition से congruent है. If we know about that, अगर हमें अच्छी तरीके से पता है कि इनकी conditions क्या है, इन conditions में क्या क्या require है, then we have easily give the answers of this type of question. Okay. Yesterday in introduction class I have already told these things, which type of figures, which type of triangles are given there and how we identify, means both are congruent or not. Okay. And congruent, so by which rule, by which condition, by which criteria. Okay. Conditions or criteria both are same word. Okay. So don't worry, that is very easy. Okay. So let's see here second part of this question. Okay. Understood everyone? This is the very simplest question. In introduction part we have discussed all this criteria, but today we have solved the questions related to this. Okay. Now see here B part. In B part what things is given here? Suppose two triangles given है, ठीक है? These two triangles are given. बोर्ड पे ऐसे ही थोड़ा exactly equal हो या ना हो, लेकिन that is equal. Okay. Understood? अब देखिए that is RPQ और this figure है, that is कोई भी figure है, that is ZXY. This figure RPQ and ZXY. Okay. RPQ and ZXY. Now here given means क्या क्या given है यहाँ? Means angles, sides, which things is given here? That is यहाँ क्या है? ZX है वो किसके equal है?
आरपी के, ये गिवन है क्वेश्चन लैंग्वेज में, तो जेड एक्स किसके इक्वल है, आरपी के। सेकंड वन गिवन है आर क्यू इक्वल है किसके, जो आर क्यू है वो किसके इक्वल है, जेड वाई के। दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन हियर, ओके, आर क्यू इक्वल है जेड वाई के। थर्ड है पी आर क्यू, मीन्स पी आर क्यू, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एक्स जेड वाई, ये गिवन है। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई, दिस इज गिवन, ओके। नाउ इस बार थर्ड साइड गिवन नहीं है, दो साइड और एक एंगल गिवन है। एंगल क्या है, पी आर क्यू एंड एक्स जेड वाई, ओके। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि विच कंडीशन विच क्राइटेरिया हियर फॉलो दैट, ओके। यहाँ कौन सा क्राइटेरिया कौन सा कंडीशन अप्लाई करिए फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, और ये हमें दो साइड एक एंगल है, तो वी नो वेरी वेल बोथ ट्राइंगल्स आर congruent, both triangles are congruent, it means triangle RPQ is congruent to triangle ZXY, okay। we also write in this way triangle PQR congruent है किसके, triangle XYZ। ये सारा मैटर क्वेश्चन में गिवन है, फिगर भी गिवन है, हमें तो आइडेंटिफाई करना है विच कंडीशन विच क्राइटेरिया हियर फॉलो, ओके। सो सी, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है। वी नो वेरी वेल इफ टू साइड आर इक्वल एंड वो दो साइड के साथ जो एंगल है वो इंक्लूडेड है, मीन्स उन्हीं दो साइड के साथ एंगल बना हुआ है, तो वो कौन सा रूल होता है, दैट इज SAS, साइड एंगल साइड रूल। इफ टू लाइन्स आर equal congruent and the angle is also included with from these two sides, so that is called SAS congruency rule, okay, understood this point? So by which rule this is proved, that is by SAS rule, that is side angle side, triangle PQR is congruent to triangle XYZ, ओके। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, ऐसे ही फिगर्स गिवन होंगे, बस हमें सारे जो पांचों क्राइटेरिया है पांचों कंडीशंस है, इफ वी नो अबाउट द कंडीशंस, इफ वी नो अबाउट द complete introduction, then we have easily solved the questions, means this is congruent or not, okay, understood everyone? तो triangle PQR congruent है किसके, triangle XYZ के, okay, so this is solved। अब दो parts और है, C और D। I have explained all criteria, all conditions, I have explained two examples and many more examples in first class, so now I think everyone can do that two parts, okay, both are same। आपको ये देखना है वहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ASA, RHS, AAS, SSS and SAS, okay, understood? So first question complete, now second question। I think everyone understood very well, this is very easy question। Question second is you want to show that triangle ART is congruent to triangle PL। अब क्वेश्चन ये है you want to show that these two triangles are congruent, ये हमें show करना है, ठीक है। So for that what is the first part of this, that is first part A, and now what is first part, that is if I have written here question language, that is if you have to use triple S criteria, ठीक है, triple S criteria, then you need to show, means क्वेश्चंस की लैंग्वेज गिवन है, इफ यू हैव टू यूज ट्रिपल एस क्राइटेरिया, अगर आप ट्रिपल एस कंडीशंस यूज कर रहे हो तब आपको यू नीड टू शो, मीन्स आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, लेट्स सी हियर, मीन्स ए आर किसके इक्वल है, ये हमें शो करना है। सेकंड है दैट इज आर टी, थर्ड वन है एक और साइड है दैट इज 80, ओके। तो ये तीन साइड किसके इक्वल है ये हमें शो करना है, क्यों शो करना है, क्योंकि हमें पहले से गिवन है कि कौन सी कंडीशन है, ट्रिपल एस कंडीशन है, ट्रिपल एस कंडीशंस के लिए ये तीनों लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है वो हमें यहाँ शो करना है। फिगर देख लीजिए, यहाँ फिगर बनाया हुआ है, तो दिस इज फिगर इज दिस वे, ए आर टी and ART we write this way,
थोड़ा सा से अलग सा है क्योंकि बोर्ड पे है, तो डोंट वरी, लेकिन क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लैंग्वेज वी नो वेरी वेल, ठीक है। विजिबल एवरीवन, ART और PEN, ठीक है। ये दो फिगर्स गिवन है। ट्रिपल एस क्रिटेरिया मीन्स ट्रिपल एस कंडीशंस। सो AR, अब देखिए AR, तो AR कॉरस्पॉन्डिंग देखना एकदम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये AR, तो AR क्या है भाई PE, तो AR किसके इक्वल होगा, AR किसके इक्वल होगा PE, तो AR is corresponding to PE. Why? Because here given that is SS triple criteria, triple criteria तो तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों साइड इक्वल होगी, तो हम we know very well how to identify the corresponding sides. Okay, so AR corresponding है किसके PE के, then second one RT क्या है, this one RT, तो RT किसके corresponding होगा EN, तो we write here RT equal to EN. ओके, देन थर्ड वन 80 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दैट इज 80 कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दैट इज PN. ओके, सो 80 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू PN. अंडरस्टूड एवरीवन? दैट इज वेरी बेसिकली क्वेश्चंस. ओके, दैट फर्स्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस ये है. इफ वी नो अबाउट दैट देन वी इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, नाउ हियर second part of this question, that is the same way, but now second question, if I have erased this thing, first part done, second part. In second part maybe different criteria is given. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के B पार्ट में था एक क्राइटेरिया डिफरेंट था, तो सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही हो सकता है. ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में दैट इज इफ इट इज गिवन दैट, if it is given that एंगल T is equal to है एंगल N, एंगल T किसके इक्वल है, एंगल N के, देन N you are, एंगल T है N के इक्वल, you are to use, वहां क्या था ट्रिपल, यहाँ क्या है SAS, तो SAS का मीनिंग टू साइड और वन एंगल, और ये पता होना चाहिए SAS टू साइड है और वो एंगल कौन सा होगा, उन दो साइड के साथ इंक्लूडेड एंगल. ठीक है, तो दैट इज SAS क्राइटेरिया. तो इसके लिए क्या आइडेंटिफाई करना है, यू नीड टू हैव, हमें किन चीजों को शो करना है, यू नीड टू हैव टू शो दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज RT किसके इक्वल होगा, सेकंड पार्ट PN किसके इक्वल होगा. अब इस बार एंगल गिवन नहीं है, केवल दो ही चीज आज की है कि ये दो चीज क्या होगी, सेम वही है. सपोज ये ART है और ये PEN है. ठीक है, ये ART है, ये PEN है. नाउ RT किसके इक्वल होगा, RT किसके इक्वल होगा EN के, तो RT इक्वल टू किसके होगा EN के. PN किसके इक्वल होगा, दिस PN किसके इक्वल होगा 80, तो PN इज इक्वल टू 80. नाउ वी हैव गिवन टू साइड्स बोथ आर इक्वल. ठीक है, लेकिन SAS है तो एंगल भी बता सकते हैं. एंगल SAS का मीनिंग वी नो वेरी वेल, SAS मीन्स टू साइड्स एंड दैट एंगल विल बी इंक्लूडेड विद दैट टू साइड्स. तो यहाँ कौन सा एंगल इक्वल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, तो एंगल ATR इक्वल टू होगा PNE के, और ये यहाँ पहले से गिवन है एंगल T किसके इक्वल है N के, तो ये देख लीजिए एंगल T किसके इक्वल है N के, ये पहले से गिवन था, दोनों साइड हम आइडेंटिफाई कर चुके. तो एंगल क्या था ATR इक्वल टू एंगल PNR. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ both triangles are congruent, तो triangle ART is congruent to triangle PEN. Okay, understood this? That is very easy and simplest question. Okay, see next question. This is question second. Understood everyone? Question third. What third we have? Firstly erase this.
थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, यू हैव टू शो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन में सी एंड डी एंड सेकंड क्वेश्चन में सी पार्ट, दो पार्ट उसके एक्सप्लेन कर दिए, तो रिमेनिंग फर्स्ट में 2 पार्ट और सेकंड में 1 पार्ट यू सेल्फ टू डू फॉर प्रैक्टिस। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल AMQ। इसका फिगर भी गिवन है, ठीक है। AMP कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये हमें शो करना है। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल AMQ के। देखिए क्वेश्चंस की लैंग्वेज, फर्स्टली आई हैव राइट इन द फॉलोइंग, फर्स्टली आई हैव रिटन हियर कंप्लीट क्वेश्चन लैंग्वेज, इन द फॉलोइंग प्रूफ that is supply the missing regions, means जो regions missing है उन्हें हमें fill करना है, ठीक है। और fill कैसे करना है वो भी सी। सो कुछ steps है और कुछ regions है, तो steps भी है और regions भी है। देखिए कैसे, किस फॉर्मेट में। फर्स्ट है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर क्या है इसका? AMP इस वे में इसका फिगर, ठीक है, दिस एंड दिस, और ये एक ऐसी साइड है, इक्वल है, देख लेना, दिस इज इक्वल टू दिस। ये फिगर है A, ये M है, तो AMP और AQ, तो मैं ऐसे राइट कर रहा हूँ AMP AMQ, ठीक है, AMP और A, और तो ये सब गिवन है, ठीक है। हमें ये शो करना है ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये डायग्राम हमें गिवन है। अब ये डायग्राम गिवन है और इसमें ये सिंबल्स गिवन है। इफ वी नो अबाउट दिस थिंग, मीन्स अगर हम इस डायग्राम से आइडेंटिफाई कर ले तो वी इजीली प्रूव दैट। सिंपल है, फर्स्ट पार्ट गिवन है कि AM, फर्स्ट है PM इज इक्वल टू QM। सेकेंड पार्ट है एंगल AMP इक्वल टू एंगल AMQ, दिस इज गिवन। थर्ड पार्ट है AM इज इक्वल टू AM, ठीक है, AM इज इक्वल टू AM, ठीक है। ये AMP लिखिए या फिर AMQ लिखिए या QMA लिखिए, बोथ आर इक्वल। ओके, थर्ड है, थर्ड इज डन। फोर्थ है ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल AMQ के। ओके, ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल AMQ के। नाउ अब यहाँ हमें रीजन्स फिल करना है कि ये क्यों है, ठीक है। तो PM इक्वल है QM के। क्यों इक्वल है? फिगर देखिए, ये PM में ये 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स, ये मीन्स एक दूसरे को गिवन है कि ये बोथ आर इक्वल। तो PM और QM इक्वल क्यों है? क्वेश्चन में गिवन है। तो आप कहेंगे लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिगर में शो किया हुआ है। और ये इफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग हाउ वी डिफाइन, देन वी हैव आइडेंटिफाइड दिस थिंग। ओके, हम बार बार डायग्राम्स शो करते थे ऐसे, ठीक है। तो मैं ऐसे ड्रॉ करता था दिस वन। अब ये किसके इक्वल है? इसके। तो इट मीन्स ये 1 1 डॉट है, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। ये 2 2 डॉट्स है तो ये दोनों इक्वल। ये 3 3 डॉट्स है, इट मीन्स दीज आर इक्वल। थर्ड, AM इक्वल टू AM, दैट इज कॉमन साइड। ओके, इन बोथ ट्राइंगल्स AMP एंड AMQ, that AM is used, so that AM is common side. So here we written that is AM is equal to common side. Now triangle AMP congruent at triangle AMQ. Why? Because here we prove 2 sides and 1 angle. And now see that 1 angle is included with 2 sides or not. So this sides and this side and this common side. So ये these 2 common sides और ये included angle with this side. So that is by SAS rule. Okay. So these both triangles are congruent by which rule? That is SAS rule. So from in this question and first, second, third, we have, see here the criteria for congruence of triangles, means conditions for congruence of triangles. So
So today we have seen these all criteria and conditions. In next class we have discussed remaining questions of this exercise. Thank you. Have a nice day.